Right? So we'll start by reciting today's verse. I'll recite, read this thing, and then we'll start. Okay. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामपि हम व्यासा कवीनाम् उष्णः कवि. So this is what is kind of said by the Lord, and the translation goes as follows. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Of the descendants of Krishna I am Vasudeva, and of the Pandavas I am Arjuna. Of the great sages I am Vyasa, and among great thinkers I am Bhushana. So here it is given, purport Prabhupada is kind of explaining, but first we will do Mangalacharan, and we'll do a special Mangalacharan today. Normal one with one added line. आप लोगों ने इसको कीर्तन में सुना होगा. We'll still, kind of. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं सहगजातं सहगणरघुनाथान्वितं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैके विदुरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. So read the purport by Srila Prabhupada of this verse. Purport: Krishna is the original supreme personality of Godhead, and Baldeva is Krishna's immediate expansion. Both Lord Krishna and Baldeva appeared as sons of Vasudeva, so both of them may be called Vasudev. From another point of view, because Krishna never leaves Vrindavan, all forms of Krishna that appear elsewhere are his expansions. Vasudeva is Krishna's immediate expansion, so Vasudeva is non-different from Krishna. It is to be understood that Vasudeva referred to in this verse of Bhagavad Gita is Baldeva or Balarama, because he is the original source of all incarnation, and thus he is the sole source of Vasudeva. The immediate expansions of the Lord are called Swamsha, personal expansions, and there are also expansions called Vibhinnamsha, separated expansions. Amongst the son of Pandu, Arjuna is famous as Dhananjaya. He is the best of men and therefore represents Krishna. Among the Munis or learned men conversant in Vedic knowledge, Vyasa is the greatest because he explained Vedic knowledge in many different ways for the understanding of the common mass of people in this age of Kali. And Vyasa is also known as incarnation of Krishna. Therefore, Vyasa also represents Krishna. Kavis are those who are capable of thinking thoroughly on any subject matter. Among the Kavis, Bhushana, Shukracharya, was the spiritual master of the demons. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. Thus, Shukracharya is another representative of the opulence of Krishna. तो इसमें क्या बताया जा रहा है परपट में? श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि जो भगवान के अलग अलग एक्सपांशंस हैं उनके कारण कौन है? प्राइमरी बलदेव जी. तो बलदेव जी कौन है? लॉर्ड बलराम, राइट. और बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है वही हर एक जगह एक हिसाब से देखे जाएंगे. क्योंकि वृंदावन में आए वसुदेव जी के घर में, तो उन्हें और बलराम जी, क्योंकि भगवान जो हैं और बलराम जी दोनों क्या है? नॉन डिफरेंट है. और नॉन डिफरेंट क्यों है वो आगे देखा जाएगा. इसीलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि दोनों जन को वासुदेव कहा जाता है, बलराम जी को भी और स्वयं भगवान को भी वासुदेव कहा जाता है. तो हम लोग अब भी इसी कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे नित्यानंद प्रभु के ऊपर, राइट. क्योंकि ऑलरेडी बलराम जी के ऊपर कल लेक्चर दे दिया था अच्युत बलराम प्रभु ने, बहुत सुंदर लेक्चर दिया था, आप लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन. भगवान की लीलाएं बार बार दोहराई जा सकती हैं, उसमें कोई लॉस नहीं है, बार बार सुनी भी जा सकती हैं. ये जो हम लोग सुन रहे हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, बट ये मंडेन पास टाइम्स जैसा नहीं है. जैसा बाहर है
एक मूवी निकलती है, आप लोग एक मूवी को एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, फिर उसके बाद कभी देखेंगे क्या उस मूवी को? कोई नहीं देखेगा। सेम चीज गानों से होगी। लेकिन आप भगवान का नाम देखिए, हजारों वर्षों से, कितने युगों से यही नाम का उच्चारण किया जा रहा है, कितने युगों से, कितने मनवंतरों से इसी नाम का उच्चारण कि नया नया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नए नए निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आज भी लोग कुछ ना कुछ छेड़ रहे हैं उसमें, भगवान के मंत्र को अपना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन भगवान की लीलाएं जो है वो ऐसी हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, वो एक्चुअल में चैतन्य भागवत से लिया गया। चैतन्य भागवत किसने लिखी है, आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको लिखने का कारण क्या था, उसमें भगवान की पूरी लीलाएं बहुत संक्षिप्त रूप में बताई गई है। और लिखा किसके द्वारा गया, वो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, राइट। तो जब भी आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले क्या करते हैं आप लोग, कोई बता सकता? कोई भी चीज पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या किया जाता है? हाँ, सारांश। हाँ, ऑथर का नाम और एक्चुअल में सबसे पहले हम समझते हैं वो किस चीज के बारे में बता रहा है। सभी आंसर्स राइट हैं, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज डिफरेंट। जो भी डिवोटीज ऑनलाइन हैं उनके लिए थोड़ा लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लैपटॉप का स्पीकर इज गॉन, सो यू ऑल कैन पुट इन अ मैसेज व्हिच इज काइंड ऑफ हियर। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आई रीड इट आउट। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे आप कोई भी बुक उठा करके नहीं पढ़ना। आज के समय में ऐसा होता है कि जो लोग बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, हम लोग वही उठा करके पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग पहले ऑथर को पढ़ते थे कि किसने लिखा है, उस व्यक्ति के बारे में तो पता हो। वरना लिख दिया कि स्टॉप एडिक्शन के ऊपर बुक लिख दिया, लेकिन खुद स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति का पढ़ के होगा क्या, राइट। तो उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा वृंदावन दास ठाकुर जी के जीवन के बारे में, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एक आप लोगों को ग्लिम्स देता हूँ कि एक्चुअल में वृंदावन दास ठाकुर थे कौन, राइट। तो अभी जो वृंदावन दास ठाकुर थे वो अपीयर हुए थे कहाँ पे, वो अपीयर हुए थे नारायणी देवी के गर्भ से। अब ये नारायणी देवी कौन थी, इसको पूरा एक फैमिली लीनिएज मतलब मैं बता देता हूँ। श्रीवास पंडित थे। श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो उनके जो भाई थे वो, उनका नाम था नलीन पंडित। नलीन पंडित की जो डॉटर थी वो थी नारायणी देवी। अब जो नारायणी देवी थी, जब ये छोटी थी, बच्ची थी, तो इनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। किस रूप में? जो बीटल नट होता है, भगवान ने वो चू किया था और फिर वो नारायणी देवी को दिया था। और जब वो उन्होंने, नारायणी देवी ने उसको लिया, पाया उसको, उसी क्षण उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। फिर जब शांत होती तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे, कृष्ण प्रेम में रो, आप तुरंत रोने लगती है। बच्चों को रुलाने के लिए ऐसे किसी बच्चों को आप बोल दो कि रोना चालू कर दो, रो गया आप लोग? कोई, मैं आप लोगों को बोल दो रो, कोई रोएगा? नहीं रोएंगे, हंस रहे हैं ऊपर से उल्टा, राइट। तो लेकिन उनको जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो वो रोना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब जो ये नारायणी देवी थी, इनका विवाह होता है वैकुंठ दास। वैकुंठ दास नाम के ब्राह्मण थे जो कुमार हट में रहते थे। एक गांव है, हट मतलब गांव होता है बंगाल में। तो उनका विवाह हुआ इनसे। अब ये होता है कि जब वृंदावन दास ठाकुर गर्भ में ही थे, उसी समय क्या होता है, जो वैकुंठ दास थे, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और लीला समाप्त कर दी, भगवत धाम चले गए। अब जब वृंदावन दास छोटे थे, वृंदावन दास ठाकुर छोटे थे, वो और उनकी माता, अब श्रीवास पंडित थे। उन्होंने जब देखा उनकी नीस इस प्रकार से, मतलब जो हम लोग बोल सकते हैं भांजी एक हिसाब से कॉमन लोकल लैंग्वेज में, तो उनको, वो अकेली एक बोलते ना विधवा है, उनके पास एक पुत्र है, ये देख करके उन्हें करुणा आई। उन्होंने बोला कि इनका ख्याल मैं रखूंगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ,
जो वसुदेव दत्त थे ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड पार्षद है, मतलब बहुत ज्यादा निकटतम है। इन्होंने क्या बोला कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, तो जो बचपन था उनका इसी में निकला। में ये बुक है नित्यानंद चरितामृत, तो ये भी जो निकाला गया है, जो ऑनलाइन डिवोटीज है वो भी देख सकते हैं। इट्स लाइक रियली ब्यूटीफुल बुक, ऑल द पास्ट टाइम्स निकाले गए हैं नित्यानंद प्रभु के चैतन्य भागवत से। पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड है इन शॉर्ट, राइट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है। अभी तो हमने सुना कि वासुदेव ना, दोनों को बोला जा सकता है, लेकिन किस रूप में? अगर दोनों सेम है कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इसीलिए जो नित्यानंद प्रभु हैं या बलराम जी हैं वो क्या है? सेवक भगवान है। वो भगवान है लेकिन सेवक भगवान है, सेवक रूप में आए हुए हैं। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी? वो भी पूछ सकता है ना, भगवान तो सेवक भगवान बन के आने का क्या आवश्यकता है, राइट। तो ये इसलिए आए हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है भगवान कृष्ण है, ये अपनी लीला करें। और जब ये अपनी लीला करेंगे तो ये लीला किस रूप में होगी इनकी? भक्तों का जो आकर्षण है, लविंग सर्विस जो है ना भगवान के प्रति, उसको कैसे कल्टीवेट करना है, उसको सींचना कैसा है, सिंचित कैसे करना है उस सेवा भाव को। जो प्रेममय सेवा भाव होता है एक जीव का प्रति भगवान के लिए, वो कैसा होना चाहिए, तो ये दिखाने कौन आए हैं? स्वयं नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु। तो उनको देख करके हमको सीखना है ना, प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए ना हमारे कॉलेजेस स्कूल्स में हम लोग जब पढ़ते हैं तो टीचर एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाती है कि देखो इसको ऐसे करना है ना, फिर उसको देख करके हम लोग क्या करते हैं और आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान क्या लेते हैं, इस प्रकार के मतलब बोलते हैं ना अवतार लेते हैं या अपने आप को इस प्रकार से एक्सपांड करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों में से जितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी होंगी, तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो हैं वो और मधुर हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं से, उसी प्रकार जो नित्यानंद प्रभु की लीलाएं हैं ना वो बलराम जी की लीलाओं से और थोड़ा ज्यादा मधुर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग एक्चुअल में सबको अच्छी चीज चाहिए होती है ना, थोड़ा और अच्छा होता तो क्यों नहीं। तो वो भी अच्छी है बट देयर इज नो डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा स्वीट है तत्व में। तो हम लोग वो देखेंगे। जैसे आप बलराम जी का देखेंगे तो बलराम जी के जितने भी पास टाइम्स हैं ना, जितनी भी लीलाएं हैं उसमें क्या क्या आता है? वो दुष्टों का संहार कर रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, आतताइयों को दंड दे रहे हैं ना। एक हस्तिनापुर को जब गुस्सा आया था उनको, पूरे हस्तिनापुर को बोले मैं इसको पूरा खींच करके गंगा जी में डुबा दूंगा। थोड़ा खौफनाक टाइप का, मतलब बोलते हैं ना भयावह है, डरावना है, थोड़ा पावरफुल। लेकिन आप नित्यानंद प्रभु को देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु को क्या बोला गया? अकरोधा परमानंद नित्यानंद राय। ये तो गुस्सा करते ही नहीं है। और क्या बोला गया? मार खे प्रेम दे दया तो नहीं, मतलब खुद मार खा लेंगे, मार खाने के बाद भी प्रेम देंगे। जगाई मदाई के केस में अगर आप देखेंगे, मैं आप लोगों को मारूं और बोलूं अभी जितने लोगों ने क्लास में स्टार्टिंग में दंडवत किया, मारने के बाद बोलूं चलो दंडवत मारो, पंचांग मार, कोई मारेगा? दंडवत हटा के सिर्फ मारेंगे आप, समझ रहे? कोई दंडवत नहीं मारेगा। लेकिन
नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? जगाई मदाई अटैक किया भगवान के ऊपर, एक लीला रूप में भगवान का खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि इनको क्षमा कर दो, इनको कृष्ण प्रेम दो ना, तो ऐसे कृपा दे रहे हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु है। अब हम लोग एक्चुअल में क्या स्टार्ट करेंगे कि नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस कहाँ हुआ ना। तो आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं? एक ही डिवोटी, ओके। तो सब लोग अभी एक्चुअल में आप लोगों ने मायापुर देखा भी नहीं होगा, लेकिन श्रवण कीजिए, जो सुनना होता है ना, यदि आप लोग अच्छे से सुनेंगे। हम लोग भी प्रभु जी जब भी कहीं लेके जाते हैं हम लोगों को किसी भी धाम में, तो उससे पहले प्रभु जी पूरे लीला बताते हैं सद्बुद्धि को। तो जब आप उस जगह पे होते हैं ना, तो आपको याद आता है कि यहाँ ये पास टाइम हुआ था, ये पास टाइम हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो आगे चल के आप लोगों के लिए भी क्या होगा, एक यात्रा हो सकती है, मायापुर की यात्रा, वृंदावन यात्रा, तो आप लोग उसको रिलेट कर पाएंगे, राइट। चैतन्य जो नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था एक चक्र, एक चक्र नाम का एक गांव है राधा देश में, वेस्ट बंगाल पश्चिमी साइड पे। तो वहां पे इनका आविर्भाव हुआ था, और ये आविर्भाव उनके ही आज्ञा से, एक हिसाब से बोल सकते हैं आप, उनके चाहने से ही हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे, इसलिए उनका आविर्भाव हुआ। अब ये आविर्भाव जब हुआ, एक चक्र धाम, धाम बोलते हैं उसे, गांव बोलना नहीं होगा, क्योंकि जहां भी भगवान आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो धाम के ही जैसे होते हैं, वो धाम ही होते हैं, जैसे क्या होता है, धाम ही होते हैं। तो वो जो धाम था, वहां पे जितनी की जितनी ये सारी पीड़ाएं होती है ना, जो प्रकृति द्वारा, कहीं अन्न नहीं है ना, सूखा पड़ चुका है, बारिश नहीं हो रही है, ये सारी चीजें गायब हो गई। भौतिक जो नेचुरल कैलामिटीज बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पे उसके बाद। तो नित्यानंद प्रभु ने जन्म या फिर उनका आविर्भाव कहाँ हुआ? एक ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण, उनका नाम था हड़ाई पंडित। हड़ाई पंडित जो थे, ये वहीं रहते थे एक चक्र गांव में, और उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था पद्मावती देवी ना। तो पद्मावती देवी जो थी, इन्हें क्या कहा गया है, जगत माता का टाइटल दिया गया है इनको, कि ये जगत माता थी ना। तो इनके घर में हुआ। अब जब इनके घर में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, तो ये बहुत एकदम हर्षित हो चुके हैं, मतलब प्रेम की कोई सीमा नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जो अंग की कांति थी, जो रेस था उनके बॉडी का, वो देख करके ही वो समझ गया कि दिस इज नॉट नॉर्मल, कोई मतलब अद्भुत ये शिशु है, कोई नॉर्मल शिशु तो ऐसा होता नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अपने शरीर को माया से ढक दिया, आवरण डाल दिया उस पर, ताकि लोग पहचान नहीं पाए। और इसी प्रकार से वो बच्चों के साथ अपना हाथ से खेल कूद करते रहते थे। तो इसी में क्या होता है, अब उनका जो हास्य था, या फिर जो खेलते थे ना, वो हमारे जैसा नहीं, गिल्ली डंडा ये सारी चीजें नहीं खेलते थे, या फिर कहीं छुपम छुपाई हो गई बचपन में, क्या पता आप लोग क्या क्या पकड़म पकड़ाई खेलते थे सब लोग, हम लोग। आजकल के बच्चे तो स्मार्टफोन में खेलते होंगे, ऐसे तो बाहर जाते नहीं है। तो जो नित्यानंद प्रभु जो लीलाएं करते थे, या जो उनका खेलने का क्या होता था, कि वो जो भगवान की लीलाएं ना, वही सब करते थे। तो शुरुआत कहाँ से की है? जब किडनैपिंग होता है वसुदेव जी और देव की माता, तो किडनैपिंग होने के बाद जेल में जाते हैं, जेल में जाने के बाद एक बच्चे को वसुदेव बना दिया, एक को देवकी बना दिया, बाकी को गार्ड्स बना दिया, उसको घेर दिया, और फिर उसके बाद कंस आ रहा है, एक को कंस बना दिया, बोला तुम्हारे पुत्रों को मैं मार दूंगा। ये सारी चीजें एकदम एक्शन में, एकदम एक्टिव। और जब ये करते थे वो, तो एकदम उसी लीला में रहते थे। ऐसा नहीं कि चलो हमारा ड्रामा होता है, ड्रामा किया 15-20 मिनट, उसके बाद सबके सब हरे कृष्ण, ऐसा नहीं। तो वो लीला करते, वो कंटिन्यूअस लीला करते थे, बच्चे उन्हें घर जाने ही नहीं देते थे, बोलते थे कि नहीं, क्योंकि वो जो उनकी गोद में सोते थे बच्चों की, वो चाहते नहीं थे वो उस गोद से उठ के जाए। बड़े भी बच्चे होते हैं ना उसमें, खेल कूद में ऐसा होते हैं, सब सम आयु के होते हैं। तो अब वो खेलते खेलते ऐसा हुआ, तो ये सारी लीला कर रहे थे। और उन लीलाओं में यदि आप देखेंगे, तो गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला थी,
और ऐसे करते 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 अनेक लीला, कोई छट्टासुर बन गया, कोई तृणाव्रत बन गया। किसी को अगर जानना है ये कितनी लीलाएं उन्होंने की, तो आप हमारा बुक स्टॉल है, आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी से ओम प्रकाश प्रभु पीछे बैठे हैं, आप लोग कृष्णा बुक ले सकते हैं। कृष्णा बुक में भगवान की सारी लीलाएं, एक लीला नहीं छोड़ी उन्होंने, सारी लीलाएं की, सारी लीलाएं एनैक्ट की। अब ये खत्म हो गया बोलेंगे, अब ये तो खत्म हो गया ना, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनंत है, और जो लीलाएं कर रहे हैं वो स्वयं अनंत शेष है, स्वयं बलराम जी। तो उनके पास तो पूरा मेमोराइज्ड है लीला, वो कितने युगों से भगवान की लीलाएं को गा रहे हैं ना, उनको पता है कि क्या लीला है। तो ऐसे क्या होता है कि वो कौन सी लीला करने लगते हैं, अब लीला करते हैं वो रामायण की ना। जब ये लीला करते हैं वो, तो क्या बन जाते हैं, अब जैसे बलराम जी हैं ना, बलराम जी क्या है, यदि आप देखेंगे रामलीला में स्वयं लक्ष्मण जी हैं, तो लक्ष्मण जी बनते हैं। तो अब इंद्रजित का जो वध होता है वो इनैक्ट कर रहे हैं ना। तो इंद्रजित को मार दिया, अब रावण की एंट्री होती है। तो रावण जब आता है, रावण क्या बोलता है कि मैं तुमको मारूंगा, और फिर वो अपना बाण निकालता है ना। अपना बाण जब निकालता है वो, उसका नाम क्या रहता है, किसी को पता है? शक्तिशैल है उनका, जो बाण रहता है स्पेशल मारने के लिए। तो उनको मारते हैं, और तुरंत क्या होता है, नित्यानंद प्रभु को लगता है फ्लैट ऑन ग्राउंड, सांस ओस लेना बंद। अब जो बच्चे होते हैं वो तो कर रहे हैं अपना ड्रामा, लेकिन बच्चे देखते हैं ये तो सांस ही नहीं ले रहे हैं, तो बच्चे रोना चालू कर देते हैं, एकदम जोर जोर से रो रहे हैं, यहाँ वहां भाग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, देखिए देखिए निताई को क्या हुआ, निताई को क्या हुआ। तो ऐसे क्या होता है, एक जन आते हैं और वो समझते कि मतलब ये लीला में जा चुके हैं, तो बोलते हैं कि हनुमान जी कौन है आप में से। तब क्या याद आता है बच्चों को कि निताई ने क्या बोला था, नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला था कि यदि ऐसा होता है तो आप सबको मुझको घेरना और भगवान के नाम को लेना है जोर जोर से ना, जोर जोर से भगवान का नाम लेना है। और कोई जाएगा, हनुमान जी वहां जाएंगे, वहां से लेके आएंगे पूरा, फिर संजीवनी ये हो करके मेडिसिन मैन पिलाएगा ऐसे करके ना। लेकिन जब ये हुआ, इसमें क्या होता है, सब भूल गए, हर एक चीज क्या हो गया, भूल गया, वो परेशान हो गया, रोने लगे। तो बोला गया उनको, तो उतने में फिर बच्चों को याद आता है, अच्छा ठीक है चलो चलो ये करना है। तो फिर जाते हैं हनुमान जी अपना पूरा अलग अलग, उनको बोलते हैं अरे यहाँ बैठ जाओ थोड़ा खा पी लो, बोलते नहीं नहीं मुझको जाना है, ये पूरा पास टाइम होता है। तो फिर जब वो आते हैं, तो फिर वो मेडिसिन लेकर के मेडिसिन मैन उनके मुंह के पास रखता है, लेकिन जब मुंह के पास रखते हैं तो भी कुछ होता नहीं है। तो क्या करते हैं, उसके साथ एक और सप्लीमेंट लगता है, वो क्या है, भगवान का नाम। तो क्या करते हैं, भगवान के नाम के उच्चारण के साथ उनको जब देखते हैं, तो उनके प्राण वापस आ जाते हैं ना। तो उनके प्राण जब वापस आते हैं, तो हड़ाई पंडित और माता जी वहीं रहती हैं, तो वो लोग भी उनको मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा आलिंगन करते हैं उनका, पद्मावती माता जी। तो फिर उसके बाद ऐसे क्या होता है, एक जन प्रश्न पूछते हैं उनसे, बोलते हैं कि तुम ये सब लीला इतने अच्छे से कैसे कर पाते हो, कौन सिखा रहा है तुमको, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, किसी से सुना नहीं, कुछ नहीं किया। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, ये सारी लीलाएं तो मेरी ही हैं, तो मुझको क्या सिखाने की जरूरत है, ऐसा। तो ये नित्यानंद प्रभु का एक बोल सकते हैं आप चाइल्डहुड के पास टाइम से ही। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अब नित्यानंद प्रभु यहाँ पे अपनी लीला कर लिए, तो समय आता है क्या, तीर्थ पे जाने का। तो तीर्थ पे जाना है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये जो उनकी इच्छा होती है पहले ही प्रकट कर देते हैं वो। तो हड़ाई पंडित जो होता है, पद्मावती माता जी, ये बहुत चिंतित हो जाते हैं ना। चिंतित क्या, एक हिसाब से भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिए नित्यानंद प्रभु क्या होते हैं, उनके प्राण धन होते हैं। परमात्मा है, परमात्मा हर एक जीव का प्राण धन, हर एक जीव के ना, आप में से हर एक व्यक्ति के। हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति जो शरीर, हम लोग बोलते हैं ना शरीर छोड़ दिया इसने, शरीर छोड़ता कौन है, कौन छोड़ रहा है शरीर, आत्मा छोड़ रही है ना, आत्मा छोड़ रही है। तो यदि सोचिए आप, नित्यानंद प्रभु छोड़ देंगे, जिन्हें उन्होंने अपना शरीर एवं आत्मा मान रखा है, हड़ाई पंडित, पद्मावती माता जी, यहाँ तक कि सारे के सारे एक चक्र धामवासी, सभी ने उनको अपना जीवन मान रखा है, प्राण धन मान रखा है। तो बहुत चिंतित रहते हैं।
तो इतने चिंतित रहते हैं कि उनको बाहर जाना अलाउ ही नहीं करते हैं, बाहर जाने ही नहीं देते, तो बाहर नहीं जाना कहीं ना। और जहां जहां हड़ाई पंडित जाते हैं, चाहे बाजार जा रहे हो वो, चाहे मंदिर जा रहे हो, चाहे खेतों में जा रहे हो, हर जगह वो नित्यानंद प्रभु को लेके जाते हैं और हर बार ऐसे पीछे देखते हैं। पीछे देखते हैं किस लिए? रीअश्योर करने के लिए कि हैं कि नहीं पीछे, कि कहीं चले गए ना। तो अब होता क्या है कि एक दिन उनके घर पे एक सन्यासी आते हैं ना। सन्यासी एकदम अद्भुत सन्यासी रहते हैं, उनकी अंग कांति रहती है, और बहुत ब्यूटीफुल सन्यासी। यूजुअली आप देखेंगे जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो क्योंकि भगवान को वर्शिप करते हैं ना, तो फीचर्स ऑलरेडी रहते हैं उनमें, बहुत अट्रैक्टेड होते हैं लोग उनसे। तो हड़ाई पंडित जब देखते हैं तो जिस प्रकार से जो शैली होता है एक सन्यासी को रिसीव करने का, किस प्रकार से उनका आदर सम्मान किया जाए ना, तो उस हिसाब से उनको अच्छा भोजन कराते हैं, अच्छा प्रसाद देते हैं, अच्छे तरीके से उनको रेस्ट, ये सारी चीजें कराते हैं। और जब जाने का समय होता है उन सन्यासी का, तो वो बोलते हैं मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ ना। तो हड़ाई पंडित बोलते हैं जी बिल्कुल आप मांगिए, क्यों नहीं। तो अब सन्यासी क्या बोलते, देखिए मैं जा रहा हूँ कहाँ, तीर्थ के लिए। तो एक्चुअल में इसको क्या अंग्रेजी में प्रोविडेंस बोला जाता है, विल ऑफ प्रोविडेंस ना, जो भगवान चाहते हैं इस प्रकार से। तो बोलते मैं तो तीर्थ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं जो एकदम लर्नेड हो, या फिर बोलते हैं थोड़ा गुणवान हो, जिसको ज्ञान हो इन सारी चीजों का। लेकिन जो आपका पुत्र है नित्यानंद, तो आप मुझे उन्हें दे दीजिए, मैं तीर्थ जा रहा हूँ, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं अपने से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं, इसकी चिंता आप मत कीजिए। तो हड़ाई पंडित के प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। तो बोलते क्या मांग लिया इन्होंने, इन्होंने तो स्वयं मुझसे मेरा प्राण मांग लिया। तो जब परेशान होते हैं, और वो ये भी, उन्हें ये भी पता रहता है कि जितने भी पास्ट में लोग रहे हैं ना, जितने भी तेजस्वी लोग रहे हैं, उन सभी ने जब अपना जीवन दिया है ऐसे सन्यासियों को, तो उनके साथ अच्छा ही हुआ, या फिर उनको बोला गया ना वो ग्लोरियस ही रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बलि महाराज का पकड़ लीजिए आप, मंदिर को देते हैं। और सबसे ज्यादा फेमस जो एग्जाम्पल है वो है किसका? दशरथ महाराज का। तो दशरथ महाराज से स्वयं राम को मांगने आते हैं कौन? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी जब मांगने आते हैं तो दशरथ जी का भी यही हाल होता है, बोलते तो मेरा प्राण मांग जाओ ना, लेकिन नहीं, वो उसके विपरीत भी जा करके देते हैं हमको ना, राम जी को, लक्ष्मण जी को देते हैं। तो उसी प्रकार से आप क्या बोल रहे हैं हड़ाई पंडित, कि आपने तो मुझसे मेरा लक्ष्मण मांग लिया, जो कि स्वयं नित्यानंद प्रभु, तो कैसे दूं मैं इनको। तो क्या करते हैं, जाते हैं श्रीमती पद्मा देवी के पास। जो उनके पास जाते हैं, तो अब श्रीमती का अर्थ आप में से कितने लोगों को पता है, श्रीमती और श्रीमान क्यों बोला जाता है? किसी को पता है श्रीमती या श्रीमान क्यों लगाया जाता है? तो श्रीमती जो माता जी होती हैं उनके पीछे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो अपनी मति को जितना ऊंचा समझती हैं, उतना ही वो जो उनके हस्बैंड होते हैं उनकी मति को भी उतना ही समझती हैं। इसलिए उनको ऐसा नहीं बोलती कि मैं जो बोल रही हूँ वो करो, नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है, आप वो करो। और श्रीमान क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पुरुष होता है वो स्त्री का मान जो है अपने ही मान के समान रखता है। ऐसा नहीं कि यार उसने मेरी बेइज्जती कर दी समाज में, मैं इसकी बेइज्जती कर दूंगा या इसको मारूंगा, नहीं, सेम मान रखता है दोनों का। इसीलिए श्रीमती और श्रीमान बोला जाता है। तो पद्मावती जी क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं कि आप जैसा चाहें आप वैसा कीजिए, जो भी आप करेंगे मुझे विश्वास है कि आप सही ही करेंगे, और यही मेरा ओपिनियन है एक हिसाब से, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचती। तो हड़ाई पंडित मान जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करते हैं। अब नित्यानंद प्रभु का जो ये, हमारा तो ये हाड़ मांस का शरीर है ना, तो भगवान का जो शरीर है वो इतना कोमल होता है कि जब वो उनका आलिंगन करते हैं ना, तो नित्यानंद प्रभु का शरीर उनके शरीर में एक हो जाता है। इतना कोमल, बटर जैसा कोमल होता है, ऐसा लगता है एक ही हो गया शरीर, दबाते हैं जब। तो अब जब नित्यानंद प्रभु जाते हैं तो उसके जाने के 3 महीने तक बहुत
मतलब बोलते जो विरह का जो भाव रहता है हड़ाई पंडित का इतना गहरा रहता है, इतना गहरा रहता है कि उसको सुन करके जो उनकी पुकार होती है, जो उनकी कहार होती है, उसको सुन करके पत्थर और लकड़ी भी पिघल जाते हैं 3 महीने। और 3 महीने बाद वो शरीर छोड़ देते हैं, अपना विरह को झेल नहीं पाते हैं। और इसी प्रकार से पूरा एक चक्र गांव खाली हो जाता है, समाप्त। नित्यानंद प्रभु चले गए ना। तो लेकिन अब जब नित्यानंद प्रभु की ये तो लीला है, आप देखेंगे सन्यासी जो होते हैं ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। आप देखेंगे तो कि भगवान रामचंद्र ने भी छोड़ा अयोध्या को, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी माता को शची देवी उनको छोड़ा। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से क्या होता है, ये चलो छोड़ दिया उन्होंने ऐसा, लेकिन उसके पीछे एक बहुत हायर पर्पस होता है, जीव के कल्याण के लिए ये सारे कार्य होते हैं ना। तो ये हमें समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये समझना हम लोगों को कि हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट। तो अब होता क्या है कि जब वो जाते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। तो सबसे पहले वो निकलते हैं तो वो जाते हैं कहाँ, प्रयाग। प्रयाग जाते हैं, मथुरा जाते हैं, यमुना जी, विश्राम घाट, गोवर्धन, और जो 12 वन है ना, वृंदावन से प्रारंभ करके सारे वनों में जाते हैं वो। और इसी प्रकार जब वो गोकुल जाते हैं, गोकुल जब पहुंचते हैं तो नंद महाराज का जो आंगन है उसको देख करके वो रोना प्रारंभ कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत रोते हैं वहां, क्योंकि वो पूरा लीला स्मरण होता ना, किस प्रकार से उसी आंगन में भगवान ने लीला की थी और उसी को छोड़ करके गए तो वापस नहीं आए। लेकिन ये धारणा यदि आप देखेंगे, हमने पहले ही प्रभुपाद ने लिखा ना कि कृष्णा नेवर लीव्स वृंदावन। ये समझना पड़ेगा कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ते नहीं है। किस प्रकार से भगवान वृंदावन में रहते हैं ये यदि बताने जाएंगे तो और समय लग जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो वो वहां रोना प्रारंभ कर देते हैं, फिर वहां से वो और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तो मदन गोपाल जी को अपना प्रणाम करते हैं आखिरी, और फिर निकल जाते हैं कहाँ के लिए, हस्तिनापुर के लिए। जब हस्तिनापुर जाते हैं, जो पांडव होते हैं उनका घर देखते हैं, जब उनका रहने का स्थान, तो वहां देख करके भी वो रोना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि पांडव भगवान के इतने बड़े भक्त थे ना, लेकिन उनको कितनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी थी, कितनी तपस्या करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार से पूरे धाम घूमने के बाद में क्या होता है कि वो सब जगह जाते हैं, नवद्वीप पे सब जगह, लेकिन फिर आ जाते हैं वृंदावन में। और वृंदावन में आते तो उनको पता चल जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका आविर्भाव हो चुका है, उनको ये पता चल जाता है। तो अब क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु, अब यहाँ से हम लोग कहाँ आएंगे, चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिलता है नित्यानंद प्रभु। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन मैं इसको जितना छोटा रख पाऊंगा उतना छोटा रखने का प्रयास करूंगा। तो अब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं प्रारंभ कर चुके हैं और वृंदावन में ही हैं नित्यानंद प्रभु। उनका जो आवाज है ऐसे ही चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनकी आवाज नहीं निकल रही, थोड़ा उनका गला चोक्ड रहता है पूरे वृंदावन में, क्योंकि उनका भाव प्रबल होता है, जो धाम का भाव होता है वो प्रबल होता है। तो इसी प्रकार से वो क्या होता है उनका कि उन्हें एक महापुरुष बोल सकते हैं, वो मिलते हैं। तो बोलते हैं मुझको यहाँ सिर्फ कांटे और लताएं क्यों दिख रही हैं वृंदावन में, तो मुझे ऐसा दिख क्यों रहा है। तो वो समझ जाते हैं नित्यानंद प्रभु का भाव। वो क्या बोलते हैं कि जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं वो नवद्वीप में आ चुके हैं, पहले गया में थे लेकिन अब गया से निकल चुके हैं, अब वो नवद्वीप में है। तो इसी प्रकार वो समझ जाते हैं, नवद्वीप के लिए वापस प्रारंभ कर देते हैं अपना जर्नी बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो प्रारंभ करते हैं जब, तो चलते 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 अपने इसमें पहुंचने से पहले क्या होता है, अब जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्या करते हैं, संकीर्तन करते रहते हैं ना। लेकिन संकीर्तन जो होता है, उस संकीर्तन में उन्हें बहुत पीड़ा होती है। जो पीड़ा होती है उसमें क्या बोलते हैं वो कि कोई तो मिसिंग है ना, जिसे यहाँ कोई तो ऐसा जिसे यहाँ होना चाहिए वो है नहीं, लेकिन वो मेरा बहुत प्रिय है। और ये बोलते हैं जब, तो उसी समय क्या होता है
नित्यानंद प्रभु अवधूत वेश में आ जाते हैं, नंदन कुमार जो होते हैं उनके घर में रहते हैं वो आ करके। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में, एक एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता है, आप लोग समझ लीजिए इसको, एक एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी आने वाले हैं यहाँ पे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इसका मतलब ट्रेलर लॉन्च हो जाता है, ट्रेलर बता दिया कि हाँ ये होने वाला है। तो अब ये तो वही है उनके घर में। अब जब नंदन कुमार देखते हैं उनको, देखते हैं कि क्या की कांति है, उनको लेते हैं घर में अच्छे से खिलाते पिलाते, और नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, वो उनका जो शरीर का तेज होता है, जो उनका, जब वो बोलते हैं, जब वो रोते हैं, जब वो हंसते हैं, तो हर एक चीज इतनी उसके अंदर बोल सकते हैं ना आप, इतनी कांति होती है, इतना तेज होता है कि उसको अलग अलग रूपों से बताया गया है कि जब वो हंसते हैं ना, तो जितनी भी चेस्ट वुमेन्स होती हैं वो सब उनके पास भागी दौड़ी आ जाती है। नॉर्मल वुमेन नहीं, नॉर्मल वुमेन तो ऐसे ही भाग दौड़ के, जो चेस्ट होती है वो भी भाग दौड़ के आ जाती है ना। उनके शरीर की जो कांति होती है वो हर जगह, मतलब बोलते हैं ना, एक हिसाब से पवित्रता फैलाती है। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग चीजों को अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं, एक एक चीज का, एक एक चीज का। और जो उनके बोलते हैं ना, शरीर तो नहीं बोल सकते, जो खुशबू होती है ये अंग से निकलती है, वो कितनी मोहक होती है, क्या क्या दर्शाती है, वो इस प्रकार से बताते हैं। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आज जब मैं भगवान की उपासना कर रहा था, डीटी वर्शिप अपनी कर रहा था मैं, तो मुझको क्या आया, एक स्वप्न आया। और स्वप्न में मैंने क्या देखा कि एक ऐसे पर्सनालिटी आ रहे हैं जो सोने के रथ पे बैठे हैं, बहुत सुंदर है। उन्होंने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, हल्दर लिया उन्होंने, अपने कमर पे एक डंडा उन्होंने डाल रखा है, और उनके गले में वैजंती माला है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन करते हैं। वो बोलते हैं वो यहाँ आ चुके हैं ना, तो क्या करो, श्रीवास पंडित और हरिदास जी आप दोनों जाइए। अब हरिदास जी, यदि आप देखेंगे हरिदास जी को क्या बोला गया है, हरिदास जी जो हैं ये ब्रह्मा जी के और जो प्रहलाद महाराज है इनके कंबाइंड इनकारनेशन है, राइट। उसी प्रकार से जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, इनका भी यदि आप देखेंगे इनका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, तो व्यासदेव जी और एक काउहर्ड बॉय है, उनका नाम मैं बताता हूँ आप लोगों को। उनका नाम होता है कुसुम पीड़ा। कुसुम पीड़ा नाम के ग्वाल होते हैं उनका, प्लस वेद व्यास जी का, एक कंबाइंड इनकारनेशन। श्रीवास पंडित भी आप लोग जानते ही होंगे, श्रीवास पंडित इज, जोर से बोलिए। और दो लोग हैं दो लोग, वो मैं बाद में बताऊंगा, दैट इज सरप्राइज, और यहाँ पे बताऊंगा तो कोई रिलेट नहीं कर सकता, राइट। तो ऐसा मल्टीपल लोगों के इनकारनेशंस चैतन्य लीला में है, राइट। उनको बोलते जाओ ढूंढो उनको, वो आ चुके हैं यहाँ पे ना। तो क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, हर एक घर में जाके पूछते हैं कहाँ है कहाँ है। लेकिन उससे पहले क्या होता है पता है आपको, उससे पहले नित्यानंद प्रभु पूछते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या पूछते हैं, निमाय कोथाय, दरवाजा ठोक ठोक के कि निमाय पंडित है कहाँ, निमाय पंडित, क्या ये निमाय पंडित का घर है, कहाँ मिलेंगे मुझे, कहाँ मिलेंगे। ऐसे करते करते वो नंदन आचार्य के घर पहुंचते हैं, जहां पर फिर वो रहते हैं परमानेंट। तो ऐसे ढूंढते 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 पूरा करके वो आ जाते हैं कहाँ पे, वापस चैतन्य महाप्रभु के पास। वो बोलते हैं नहीं मिले, हम लोगों को तो नहीं मिले। तो बोलते नहीं मिले, कैसे नहीं मिले आप लोगों को। फिर वो वापस से एक्सप्लेन करते हैं। अब जब वो बलराम जी के पूरा मतलब एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, तो पूरा बलराम जी के मोड में पहुंच जाते हैं। बोलते हैं मेरी वारुणी कहाँ है, वारुणी लाओ, क्या करो ये तुम लोग। तो इसी प्रकार से क्रोध करते हैं वो। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि आप जो ढूंढ रहे हो वो तो आपके सामने, और वो आप ही दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग गर्जना करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं चैतन्य महाप्रभु पूरा उस उन्माद में रह करके। और क्या होता है कि जो वो बोलते हैं कि अब तो आप लोग ढूंढ नहीं पाए, चलो मैं लेके चलता हूँ आप लोग। तो वो लेके जाते हैं सभी लोग, बोलते हैं आओ। तो हरि नाम करते 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 पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, नंदनाचार्य का। नॉक करते हैं, नॉक नॉक, खुला।
दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है, समझ जाते हैं क्यों आए हैं ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु अंदर एंट्री करते हैं, दिस इज द मेन पार्ट। तो नित्यानंद प्रभु उससे पहले बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कभी कभी कुछ बोलते हैं, कभी पर एकदम बहकी बहकी बातें। इज मैडेड इन लव ऑफ कृष्णा, कृष्ण प्रेम में पागल हो चुके हैं। उनको देख करके कोई कुछ समझ नहीं सकता है। अभी बोल रहे हैं आम तो बाद में बोलेंगे अनार, ऐसा कुछ कुछ रिसेम्बलेंस ही नहीं है उसका। एक चीज को दूसरे चीज से अगर आप सोचेंगे इसका कुछ अर्थ होगा, नहीं है। तो जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो एकदम शांत, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बैठे होंगे, एकदम शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, जस्ट लुकिंग। और वो आंखों से ही सोच रहे हैं किस प्रकार मैं भगवान का आलिंगन कर लूं, किस प्रकार से उनकी सेवा करूं, मतलब किस प्रकार से मैं उनको स्पर्श करूं, हर एक चीज आंखों से ही कर रहे हैं। और पूरा उनका स्वरूप देखा उन्होंने, वैजयंती माला डाल रखी है, सर पे चंदन लगा हुआ है, बहुत सुंदर, पूरे शरीर को तिलक से सजाया हुआ है, तप्त कांचन जो मोल्टन गोल्ड होता है उस प्रकार के अंग की कांति है भगवान की। तो ये सारी चीजें देखते रहते हैं और फिर वो रोना चालू कर देते हैं। और जब रोते हैं तो दोनों रोते हैं, और रोते हैं तो ऐसा रोते हैं पूरा शरीर गीला हो जाता है। शरीर गीला होता है तो अब वो रोल होना चालू कर देते हैं ग्राउंड पे, एक्सटेसी में रोल हो रहे हैं। अब हम आप लोग जितने लोग पहली बार सुन रहे होंगे, आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा जिद करते हुए रोल करते हैं। लेकिन ये लीलाएं ऐसी है ना कि इसको आप सुनेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये मंडेन लीलाएं नहीं है, बहुत ही हाई लेवल की है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, वैसे मेरा भी क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ, लेकिन जो मैं पढ़ पाया प्रार्थना कर रहा हूँ कि नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने आप को प्रेजेंट करें भगवान का, क्योंकि लिए हम लोग भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते ना। हम लोग सोचे हम भगवान के बारे में बताएंगे लोग, भगवान ऑलरेडी ग्लोरियस है, हम लोग भगवान को क्या ग्लोरीफाई करेंगे, सूरज को दीप दिखाने जैसा हुआ। टॉपिक का स्पीकर में हो तो ऐसे इसीलिए एग्जाम्पल थोड़ा उस प्रकार का दिया ताकि आप लोग समझ पाए ना। तो ऐसे क्या होता है कि सब लोग कीर्तन करना चालू करते हैं, और जब कीर्तन करते हैं तो नित्यानंद प्रभु ऊपर कूदते तो हैं, लेकिन कूदने के बाद नीचे गिरते हैं जब, तो ऐसे लगता है कि इनका शरीर बचेगा कि नहीं, गिर जाते हैं। आवाज आ रही है, इस प्रकार से आवाज आती है, बताते हैं जिस प्रकार से जो बिजली होती है जब वो किसी वृक्ष के ऊपर पड़ती है तो कितना जोर से आवाज आता है, उतनी जोर से आवाज आ रही है। कृष्ण प्रेम में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये देख करके आप बोल रहे हैं इन्हें रोके तो रोके कैसे। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और नित्यानंद प्रभु को पकड़ लेते हैं। जब पकड़ते हैं तो नित्यानंद प्रभु एकदम खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से बच्चा होता है, बच्चे को यदि माँ पकड़ ले तो बच्चा क्या करता है, पुनः आलिंगन करता है माँ का। कुछ बच्चे गुस्सैल होते हैं, आजकल के कलयुग के बच्चे माँ को मारना चालू कर देते हैं, बाल खींचना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन पहले के लोग नहीं होते थे ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु सब चीज भूल जाते हैं, वो स्तंभ हो जाते हैं एकदम, कुछ नहीं समझ आ रहा उनको। और फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनको अपने लैप पे सुलाते हैं, अपनी जांग पे उनका सर रख देते हैं, अपनी गोद में सुलाते हैं। तो इस पे आचार्य क्या कहते हैं कि जो बलराम जी है, जो अनंत शेष है, उन्हें बहुत घमंड रहता है कि मैं भगवान विष्णु को अपने ऊपर रखता हूं। तो आज भगवान विष्णु ने क्या किया, अनंत शेष को ऊपर रख दिया, तो पूरा अहंकार चला जाता है इस प्रकार से। तो वो रोना प्रारंभ कर देते हैं, रोते रोते खुद का भी कपड़ा भीग रहा है, चैतन्य महाप्रभु का भी कपड़ा भीग रहा है, रोना रुक ही नहीं रहा। तो इसी प्रकार से ग्लोरिफिकेशन करते हैं एक दूसरे का। और फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ। पता है सब चैतन्य महाप्रभु को, हर एक चीज पता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो इसी प्रकार थोड़ा हिचकिचाते हुए बताते हैं पूरा भगवान इसके बारे में। तो ये मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु का मीटिंग कैसे होता है नित्यानंद प्रभु से, लाइक ऑल अबाउट द अपीयरेंस। एक्चुअल में अपीयरेंस था, लेकिन हम लोग अपीयरेंस से और आगे बढ़ गए।
हम लोग इसी पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा यदि बोलेंगे तो रुक नहीं पाएंगे। इसके आगे और कुछ है? आई हैव लाइक दिस मच थिंग टू स्पीक। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है